civics chapter to federalism. Federalism. What is federalism? A meaning of federalism is Sanghwad, Sangh, where different levels of the government work out with power sharing in a democratic system. Just like in India, we can observe central government is working out and state government is working in process, and local government also we can observe. So the system of division of power in different levels of the government is known as federal government. Federalism. फेडरलिज्म एक प्रोसेस है, इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस constituent units of the country. In the system, all the levels of the government are totally elected by the people. They are totally constituted by the people through the elections and work out independently in their specific areas. फेडरलिज्म के डिफरेंट लेवल्स हम ऑब्जर्व करते हैं गवर्नमेंट में। A government for entire country we can observe as central government in India. Government at the level of provinces or states, state government we can observe here. State government observe कर सकते हैं हम इंडिया में। Both enjoy independent power. If we focus या observe the central and state government, both these government work out independently. Both are responsible for the facilities in their specific region. State government has power of its own. State government की अपनी अपनी powers होती हैं. And central government is also has power and answerable to the people. देश की जनसंख्या को अपने फंक्शंस के लिए आंसरेबल होती है, अकाउंटेबल होती है। एग्जाम्पल है यूएसए, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर को ऑब्जर्व करती है बट नॉट आंसरेबल टू द पीपल्स, बट सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल होती है अदर एरियाज के फंक्शंस के लिए to the people, just like USA. You can observe the example of USA. But if we talk about India, in India, central government and state government both are answerable to the people for their functions. We can observe the form of government as a unitary government. In unitary government, only one level of government we can observe. केवल एक लेवल होता है गवर्नमेंट का जो फंक्शन करता है, उनसे नीचे जितने भी यूनिट्स गवर्नमेंट की फंक्शन करेगी वो सब यूनिट के रूप में काम करेगी। दे विल बी एज सबऑर्डिनेट। Center can pass order to the local government. In this form of government, all order can be passed by the central government. Only subordinate government या sub unit government will follow them to subordinate the central government. एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम। इस तरह के फॉर्मेशन का जो एग्जाम्पल है वी कैन ऑब्जर्व एज यूनाइटेड किंगडम हियर। इफ वी टॉक अबाउट फेडरलिज्म, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? मेन फीचर्स वी कैन ऑब्जर्व हियर फॉर फेडरलिज्म इज इट हैज 2 or more लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 2 या इससे ज्यादा levels होते हैं। Just like in India, we can observe central government, state government, and then local government. In first chapter, you have observed example of Belgium. There you can observe the 3 levels of government: central, state, and community government. तो यहाँ आप different levels को observe कर सकते हैं as a government to function. Each level has its own power and jurisdictions.
जितने भी लेवल्स होते हैं फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के, उनकी अपनी अपनी पावर होती है और अपना अपना जुडिक्शन होता है, जुडिशरी सिस्टम होता है। जस्ट लाइक आपका हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है। जुडिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जुडिक्शन सिस्टम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही स्पेसिफाइड होता है। देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एज अथॉरिटी। Constitutional provisions can be changed only within the consent of both levels of government. If in this system, government wants to take any amendments in the functions of laws, then there will be a system that both level consent will be must. दोनों लेवल्स का जो कंसेंट है या तीनों लेवल्स का जो कंसेंट है वो जरूरी होता है। Court interprets the constitution and powers of different levels of government. It has a system of interpretations by the courts, just like Supreme Court, High Courts. They can interpret in the functions of the government if they work out against the constitution. अगर गवर्नमेंट के फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट जाते हैं, ह्यूमन राइट्स को खंडित करते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट इज द एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट्स के बीच में, सुप्रीम कोर्ट एज एन एम्पायर डिसीजंस लेता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैज देयर स्पेसिफिक रेवेन्यू सोर्सेज। दोनों ही लेवल्स की गवर्नमेंट के अपने अपने रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, अपनी अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। Now a question arises that what is the objectives of federalism? Federalism का objective main होता क्या है? Why we observe federalism in different countries? The first objective is to safeguard the country or promote unity of the country. गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है वो इस तरह से हैंड आउट होता है कि देश के अंदर यूनिटी बनी रहे, देश को सुरक्षा रहे, मिलती रहे। And the main motive of this federalism is to accommodate regional diversities. जितनी भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं देश के अंदर, उन सबको समायोजित करके चलना, अकोमोडेट करके चलना। Just like in India, we can observe that here are different diversities regarding regarding religion, regarding language. All diversities can be accommodated by following federalism system. इन डाइवर्सिटीज को बनाए रखने के लिए, समायोजित करने के लिए इंडिया में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। If we observe federalism, two crucial aspects of an ideal federalism. अगर हम एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं फेडरलिज्म की, so you can observe two crucial aspects there. Just like first, government at different levels should agree to some rules of power sharing. जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, वो आपसी सहमति से कुछ रूल्स पर पावर शेयरिंग करने के लिए सहमत होगी। ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, दूसरा मेन एस्पेक्ट होता है ट्रस्ट और एग्रीमेंट, आपसी तालमेल, आपसी विश्वास। टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर, इट इज मस्ट टू बी ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। Difference between, we can observe two types of federalism here, coming together and holding together. What is the difference between both? In coming together federalism, independent state coming together on their own. इस टाइप के सिस्टम में जो इंडिपेंडेंट स्टेट होती हैं वो अपनी विल्स के साथ, अपनी इच्छा से एक बिगर यूनिट की फॉर्मेशन करती हैं और एकजुट होती हैं। इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, ये संप्रभुता बनाए रखती हैं, सिक्योरिटी को बनाने की कोशिश करती हैं, बढ़ाने की कोशिश करती हैं बाय पूलिंग सोवरेनिटी, पूल करती हैं अपनी पावर्स को। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर, इन दिस फॉर्मेशन जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होती हैं उन सबकी पावर इक्वल होती है। जस्ट लाइक if we observe the example of coming together, we can observe in the world USA, Australia and Switzerland.
इन होल्डिंग टुगेदर सिस्टम में जो लार्ज कंट्रीज होते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, these countries decided to divide their powers between different constituent units and center. यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पावर का डिवीजन होता है वो डिसाइडेड होता है, just like in India. You can observe the इंडिया में जो पावर का डिवीजन है, we can observe it is in between central, state and local government. But in this system, all unit does not have equal power. There is a difference between the power, just like central has more powerful as compared to states, and state is more powerful as compared to local government. अगर हम डिफरेंस को ऑब्जर्व करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की कंपैरिजन में, एंड स्टेट गवर्नमेंट आल्सो हैज मोर पावर देन द लोकल गवर्नमेंट. कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स. जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है फेडरेशन की, उनके बीच जो पावर का डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है. मेनली एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. बेल्जियम यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग में आपने बेल्जियम के विषय में पढ़ा है. What has made India a federal country? It is an important section of this chapter. बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आस्क कर लिया जाता है. What has made India a federal country? कौन कौन से सिस्टम ऐसे हैं जो व्यवस्थित किए गए हैं इंडिया में, जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री के रूप में डेवलप करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है. 3 tiers of federation. If we observe the features of federalism here, we can observe here that 3 tiers of federation we can observe here: union, state and panchayat as a local government. Threefold distribution of legislative powers. We can observe threefold distribution of legislative power, just like union list, state list and concurrent list. What are these lists? We will discuss here later. इसी चैप्टर में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे. All the states in the Indian Union do not have identical power. जितनी भी स्टेट्स होती हैं इंडियन यूनियन में, they did not have any identical power, just like यूनियन टेरिटरीज. एग्जाम्पल के रूप में यूनियन टेरिटरीज में अलग से स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं होती, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके फंक्शंस को वॉच आउट करती है. Changes in power sharing has to be passed by 2/3 majority of parliament. अगर पावर शेयरिंग में कोई चेंज लाना होता है, अमेंडमेंट होना होता है, तो पार्लियामेंट में होगा, एंड इसके लिए रिक्वायर्ड होगी 2/3 majority of both the पार्लियामेंट सदन. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर, द एपेक्स कोर्ट इज our Supreme Court. माननीय सुप्रीम कोर्ट will take decision in that condition. We have observed that here is a division of power between 3 lists: union list, state lists and concurrent list. In union list has subjects of national importance. All subjects which are related to national importance will be in the list of union list. In these areas, central government has the power to take all decisions. Union alone can make laws. On the issues of national importance, union government alone can make all laws. The examples of national importance issues, just like defense, banking system in India, currency, foreign affairs, विदेशी समझौते, व्यापार and communication. All these areas are arise in the power of union list. In state list has subjects of local and state importance. All the subjects related to local and state importance will be concluded into state list. State government alone can make laws on these topics, just like पुलिस, स्टेट्स में पुलिस बल की व्यवस्था करना, स्टेट्स का ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज.
All these areas come under the power of state list. Concurrent list has subjects of common interest. Some subjects related to both power, central and state. So on these topics, decisions will be taken by the both government, state government and central government. Both government take frame laws together, just like education system, forest, trade, union, marriage, adoption rights, सक्सेशन राइट्स, ये और इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको हम कंक्यूरेंट लिस्ट में इंक्लूड करते हैं इफ एनी एरियाज लेफ्ट, अगर कोई भी एरिया इन तीनों लिस्ट से बाहर रह गया या कोई नया डेवलप्ड एरियाज है, अब क्वेश्चन उठता है कि उन पर डिसीजन कौन लेगा, देन यूनियन गवर्नमेंट हैज राइट टू टेक डिसीजन ऑन दैट इश्यूज। कोई भी न्यू डेवलप्ड एरिया है या कोई एरिया जो तीनों लिस्ट से बाहर छूट जाता है, उन पर डिसीजन लेने का राइट यूनियन गवर्नमेंट को होता है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डज इंडिया पार्टिसिपेट प्रैक्टिस पावर शेयरिंग? आजादी के बाद इंडिया में पावर शेयरिंग को किस तरह से लिया गया या पावर का शेयर कैसे रन किया गया? After India, it was a great issue of accommodate the differences we can observe as language. लैंग्वेज के वैरायटीज के कारण बहुत सारे डिफरेंसेस थे इंडिया में। उसके समाधान के लिए 1947 में न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज बोलने वाले एरियाज को मर्ज करके एक स्पेसिफिक स्टेट का नाम दिया गया ऑन द बेस ऑफ देयर लैंग्वेज, जस्ट लाइक पंजाब, जस्ट लाइक गुजरात, जस्ट लाइक महाराष्ट्र, मराठी लैंग्वेज से रिलेट करता है, कर्नाटका। All these states are formed on the base of their language. And some state which can't be merged on the base of language, they merged on the base of followed culture. Same culture follow करने वाले areas को merge करके same language same area में state में merge किया गया, just like Nagaland. No language has been given the status of national language. डाइवर्सिटीज को बनाए रखने के लिए किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हमारा संविधान नहीं देता है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन रिस्ट्रक्चर किया गया। राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, नई नई पॉलिटिकल पार्टीज का डेवलपमेंट हुआ एंड कोलिएशन गवर्नमेंट हैज लीड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को नई फॉर्म देने के लिए कोलिएशन गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार क्या होती है, जब एक कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाती, देन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार का गठन करती हैं, देन इट विल बी इंडिकेट एज कोलिएशन गवर्नमेंट। 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 3/4 सिस्टम के रूप में किया गया है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, local government, high court, supreme court, district courts, we can observe here to functioning as jurisdiction. रेजिडेंशियल पावर्स, कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जिनको हम रेजिडेंशियल पावर्स के रूप में इंडिकेट करते हैं, आर सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अंडर दीज 3 लिस्ट। अभी मैंने आपको पीछे भी लिस्ट समझाते हुए बताया था कि जो टॉपिक्स आपके उन एरियाज में इंक्लूड नहीं हुए, ना तो वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, दीज एरियाज विल बी अंडरटेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल टेक ऑल डिसीजन एट दैट एरिया, जस्ट लाइक एग्जाम्पल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिकॉज जब ये लिस्ट बनाई गई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इतना डेवलप्ड एरिया नहीं था, इस कारण से बाद में डेवलप्ड होने के कारण आईटी सेक्टर बाद में डेवलप्ड हुआ, इस कारण से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर डिसीजन लेने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आता है। लिंग्विस्टिक स्टेट, many new states have been formed, boundaries have been changed. After the independence,
टू फॉलो द अकोमोडेशन, बहुत सारे स्टेट्स को फॉर्म किया गया, नई नई स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई। अगर हम ऑब्जर्व करें, आजादी के समय हमारा भारत छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, लगभग 543 के करीब कुछ फॉर्मेशन थी किंगडम्स की। अब इनको एक स्पेसिफिक स्टेट में मर्ज करना था, स्टेट्स में मर्ज किया गया और ये नंबर घटकर 28 स्टेट्स के रूप में डेवलप हो गया। स्टेट्स की बाउंड्रीज में परिवर्तन किए गए। पीपल ऑफ कॉमन लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज बोलने वाले पीपल्स को एक स्टेट के दायरे में लाया गया। स्टेट्स क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कुछ एरियाज की स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पर जब फॉर्म नहीं किया जा सकता था, उनकी एथनिसिटी, ज्योग्राफी एंड कल्चर के बेस पर यूनाइटेड किया गया और उनका एक यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया। जस्ट लाइक नागालैंड, हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था, उत्तराखंड, झारखंड, ये वो एरियाज हैं या वो स्टेट्स हैं जिनको उनके कल्चर, एथनिसिटी या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से मर्ज किया गया है। लैंग्वेज पॉलिसी, गवर्नमेंट ने एक लैंग्वेज पॉलिसी को भी फॉलो किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जस्ट लाइक नो लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जिन स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट उन पर हिंदी भाषा यूज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, कोई कानून इम्पोज नहीं कर सकती। 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज को शेड्यूल किया गया, रिकॉग्नाइजेशन दी गई ऑफिशियल वर्क्स के लिए। सेंटर एग्री टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक सहायक भाषा के रूप में प्रायोरिटी दी गई। बाय दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन, जिससे कि इस लैंग्वेज का यूज करके फ्लेक्सिबिलिटी को यूज किया जा सके। वो स्टेट जो अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, फंक्शंस करने के लिए इंग्लिश भाषा का यूज कर सकती हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ स्टेट एंड डिसमिस देम। हमारा संविधान गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स को अथॉरिटी देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावरफुल, यू नो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पावर होती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कांट मिसयूज दिस पावर, ही कांट dismiss the powers of state government. Coalition government also we can observe power sharing is more effective today. आज के समय में हमें कोलिशन गवर्नमेंट ही ऑब्जर्व करने को मिलती है देश के अंदर, तो यहाँ पर ये इफेक्टिव रूप से फंक्शंस कर सकती है, पावर को शेयर कर सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट ब्रॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। क्या पॉइंट्स हैं जो भारत में फेडरलिज्म को सक्सीड करने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सेकंड इज रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर मेन रियल टारगेट टू बी सक्सीड फेडरलिज्म इन इंडिया। डेमोक्रेटिक पॉलिसीज की जो पॉलिटिक्स की जो नेचर है, वो हमारे देश में फेडरलिज्म को सक्सीड करती है, और जितनी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उनके लिए जो रेस्पेक्ट की फीलिंग है, वो भी हमारे देश में कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को सक्सीड कर रही है। और देश के लोगों का एकजुट होकर रहने की जो डिजायर है, ये सबसे बड़ी पावर मानी जाती है फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए। What undermines the spirit of federalism? फेडरलिज्म की जो भावना है, उसको पावर देने का काम कौन करता है? सेंट्रल misusing the constitution to dismiss the state government that was controlled by the rival parties. अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए, सदन में वो अपनी पावर के बल पर कोई नया गलत कानून पारित ना करा दे, इसको कंट्रोल करने के लिए राइवल पार्टीज का सिस्टम है। अपोजिशन पार्टीज के रूप में हमें गवर्नमेंट के बीच अपोजिशन करने के लिए पार्लियामेंट में पार्टी दिखाई देती है। कोलिशन गवर्नमेंट लीड टू ए न्यू कल्चर, आज के टाइम पीरियड में एक नया कल्चर हमें कोलिशन गवर्नमेंट का ऑब्जर्व करने को मिलता है, जो कि पावर शेयरिंग का एक नया एस्पेक्ट है।
रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेस्पेक्ट देनी होती है स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को, और यही कहीं ना कहीं हमारे देश में फेडरलिज्म को सक्सीड किए हुए है। Now topic is decentralization. This topic will take in the next part video. Decentralization क्या है? Which areas will be included in decentralization? All these topic we will cover in the next part video. You have to take review of this video and try to understand all the main topic related to this topic. आपके लिए क्वेश्चन है, हमने भी यहाँ पर पीछे लैंग्वेजेस के बेस पर फॉर्मेशन पढ़ी, गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यूनाइट द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? यू नो दैट द क्रेडिट गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू in board. Okay, take a review of this video and try to recall your chapter, and if you have any query, try to solve that